Welcome, dear students. Today we are going to read and discuss the question answers and exercises of Where the Mind is Without Fear by Rabindranath Tagore. Question number 1. According to the poet, what should countrymen strive towards? कवि के अनुसार देशवासियों को किस ओर प्रयास करना चाहिए? आंसर: According to the poet, countrymen should strive towards perfection. For this, they should struggle hard constantly to achieve it. कवि के अनुसार देशवासियों को पूर्णता की ओर प्रयास करना चाहिए। इसके लिए उन्हें लगातार कठिन संघर्ष करना चाहिए। Question number 2. Name 2 qualities the poet wishes to see in his countrymen in the poem. इस कविता में दिए हुए उन 2 गुणों के बारे में बताइए जिन्हें कवि अपने देशवासियों में देखना चाहते हैं। आंसर: The poet wishes to see fearlessness and truth in his countrymen in the poem. कवि इस कविता में अपने देशवासियों में निडरता और सच्चाई जैसे गुणों को देखना चाहते हैं। Question number 3. What does the poet mean by ever widening thought and actions? Ever widening thought and actions से कवि का क्या तात्पर्य है? Answer: The poet means that there should be continuous expansion in thoughts and works of our countrymen. इस कथन से कवि का तात्पर्य यह है कि हमारे देशवासियों के विचार और कार्य का निरंतर विस्तार हो। Question number 4. What kind of a heaven does the poet pray for his nation? कवि अपने देश के लिए किस तरह के स्वर्ग की प्रार्थना करते हैं? आंसर: The poet prays for a heaven of freedom for his nation, where all the countrymen are fearless and truthful. कवि अपने देश के लिए आजादी के स्वर्ग की प्रार्थना करते हैं जहां सभी देशवासी भयमुक्त और सच्चे हों। Question number 5. Whom do you think the poet addresses as father in the last line? कविता के अंतिम पंक्ति में आपको क्या लगता है कवि पिता के रूप में किन्हें संबोधित करते हैं? आंसर: The poet addresses God as father in the last line. कवि अंतिम पंक्ति में पिता के रूप में ईश्वर को संबोधित करते हैं। Now, answer the following questions with reference to the context. अब नीचे कविता की कुछ पंक्तियां दी गई हैं और उन्हीं पंक्तियों के आधार पर कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर देने हैं। बच्चों, वे पंक्तियां हैं Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. कविता के बारे में विस्तार से आप मेरे कविता के एक्सप्लेनेशन वीडियो में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए इन प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं। Question number 1. What does the poet mean by the head is held high? जहाँ सर ऊंचा उठा हो, इस पंक्ति से कवि का क्या तात्पर्य है? Answer: The poet means that we should be proud of our country and have the feeling of self-respect and confidence. इस पंक्ति से कवि का तात्पर्य है कि हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए और हमारे अंदर स्वाभिमान और आत्मविश्वास का भाव होना चाहिए। Question number 2. Explain what does the poet mean by where knowledge is free? जहाँ ज्ञान स्वतंत्र हो, इस पंक्ति से कवि का क्या तात्पर्य है? Answer: The poet means that everyone should have free access to knowledge. It should not be restricted to any extent for any person. जहाँ ज्ञान स्वतंत्र हो, इस कथन से कवि का तात्पर्य है कि
ज्ञान की पहुंच प्रत्येक व्यक्ति के लिए निःशुल्क होनी चाहिए तथा इसे किसी भी हद तक किसी भी व्यक्ति के लिए सीमित नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर नैरो डोमेस्टिक वॉल्स? संकीर्ण घरेलू दीवारें क्या हैं? आंसर, नैरो डोमेस्टिक वॉल्स आर द बैरियर्स ऑफ क्लास, caste, creed, color and religion that divide people from one another. संकीर्ण घरेलू दीवारें वर्ग, जाति, संप्रदाय, रंग और धर्म की वे बाधाएं हैं जो लोगों को एक दूसरे से विभाजित करती हैं। अब फिर से कविता की कुछ पंक्तियां दी गई हैं जिनके आधार पर हमें कुछ प्रश्नों के आंसर देने हैं और वे पंक्तियां हैं, Where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habits. Question number 1. What does the poet compare reason and dead habit to? कवि ने reason और dead habit को किससे कंपेयर किया है, किससे तुलना की है? आंसर, the poet compares reason to a clear stream that stands for logical thinking and dead habit to a dry desert that stands for our various superstitions. कवि ने रीजन को क्लियर स्ट्रीम से कंपेयर किया है और क्लियर स्ट्रीम लॉजिकल थिंकिंग यानी कि तर्कपूर्ण विचार का द्योतक है एंड डेड हैबिट की तुलना ड्राई डेजर्ट से की है जो हमारे विभिन्न प्रकार के अंधविश्वासों का द्योतक है। क्वेश्चन नंबर 2, Which lines means endless efforts are made to achieve the best quality? सबसे उत्तम गुणों को प्राप्त करने के अंतहीन प्रयास किए गए हैं। किन पंक्तियों से यह अर्थ निकल कर आता है? आंसर, द लाइन where tireless striving stretches its arms towards perfection means endless efforts are made to achieve the best quality. कविता में दी गई यह पंक्ति where tireless striving stretches its arms towards perfection, इसी पंक्ति का यह अर्थ निकल कर आता है कि सर्वोत्तम गुणों को प्राप्त करने के अंतहीन प्रयास किए गए हैं। Now, match the words given in column A with their meanings in column B. कॉलम ए में दिए गए शब्दों को उनके अर्थ के आधार पर कॉलम बी के शब्दों के साथ मिलान करें। फियर मीन्स होता है डर, तो इसे हम मिलाएंगे फीलिंग विच वन हैज ड्यूरिंग डेंजर। नंबर 2, नॉलेज यानी कि ज्ञान यानी कि जिन चीज़ों को हम जान चुके हैं, समझ चुके हैं, यानी इसे हम मैच करेंगे थिंग्स नोन, जो चीज़ें हम जानते हैं। दी, यह ओल्ड इंग्लिश है जिसका अर्थ होता है यू। दी मीन्स यू, तुम। नंबर 4, डेजर्ट मीन्स होती है मरुभूमि अर्थात जहाँ रेत ही रेत हो। सो इसे हम मैच करेंगे लार्ज सैंडी पीस ऑफ लैंड से। लार्ज सैंडी पीस ऑफ लैंड मतलब वैसी जमीन जहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत हो। नाउ विदाउट मतलब जो ना हो, जिसके पास जो ना हो। नॉट हैविंग, सो इसे हम मैच करेंगे नॉट हैविंग के साथ। नेक्स्ट, फिल इन द मिसिंग फैक्ट्स अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर टू कंप्लीट हिज प्रोफाइल। रविंद्रनाथ टैगोर के प्रोफाइल को कंप्लीट करने के लिए जो फैक्ट्स यहाँ पर मिसिंग हैं, जो खाली स्थान हैं, उनको भरना है। नंबर 1, बॉर्न ऑन। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 ईस्वी को हुआ था। डाइड ऑन 7 अगस्त 1941। ईयर ऑफ विनिंग द नोबेल प्राइज, किस ईस्वी में उन्होंने नोबेल प्राइज जीता था? 1913 1913। फाउंडेड विच लर्निंग प्लेस, उन्होंने कौन से शैक्षिक संस्थान की स्थापना की थी? तो वह है शांति निकेतन। नेक्स्ट, सम स्टोरीज रिटन बाय हिम, उनके द्वारा लिखी गई कुछ कहानियां हैं, काबुलीवाला, डाकघर इत्यादि। कलेक्शन ऑफ पोएम्स, उनकी
कविताओं का एक संग्रह है और जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था, और उस संग्रह का नाम है गीतांजलि। तो आई होप चिल्ड्रन कि ये लेसन के क्वेश्चन आंसर्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगले लेसन के क्वेश्चन आंसर्स के साथ फिर हम जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय।